سانحہ حیدری 7 مئی 2004 کو جمعے کا دن تھا کہ مسجد حیدری میں نماز ظہر ادا ہونے والی تھی۔ سندھ مدرسۃ الاسلام۔ اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ ہی اپنے بدن کے ہر عضو سے بزرگ یہ خدا کی گواہی دی۔ بم دھماکے کے ساتھ ہی چند لمحوں میں عشق خدا میں پامال ہونے والے یہ بدن شہادت کے منصب پر فائز ہو چکے تھے۔ اور زخمیوں کے بدن سے بہنے والے خون کا ہر قطرہ خالق کائنات کی گواہی دے رہا تھا۔ مسجد حیدری میں جس قسم کے بم کا دھماکہ کیا گیا تھا، اب تک ہونے والے دھماکوں میں اپنی نوعیت کا دوسرا بم تھا۔ 2003 میں نجف اشرف میں روضہ حضرت علی علیہ السلام کے بیرونی دروازے پر دھماکے میں استعمال ہوا تھا۔ مذکورہ دھماکے میں آیت اللہ باقر الحکیم اور 100 سے زائد افراد شہید جبکہ 250 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قسم کے بم کو بنانے کی صلاحیت صرف اسرائیل کے پاس ہے۔ یہ بم پھٹنے کے بعد اس مقام کی آکسیجن سلب کر لیتا ہے اور وہاں خلا پیدا ہونے کی صورت میں انسانی جسم پر موجود لباس بدن سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فضا میں موجود کیمیکل انسانی جسم پر لگ جاتا ہے، اور پھر جب فضا میں دوبارہ آکسیجن آتی ہے تو انسانی جسم پر لگا یہ کیمیکل جل اٹھتا ہے اور پھر بدن کے جلے ہوئے حصوں کے ذریعے خون میں شامل ہو کر نظام تنفس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح زخمیوں کے زندہ بچنے کے امکانات نہایت معدوم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ تاحال ہمارے ملک میں اس قسم کے کیمیائی فضلے کے اثرات سے بچاؤ کی ادویات موجود نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس بم کے سانحے میں موقع پر شہید ہونے والوں کی تعداد 10 تھی، جبکہ بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مزید 10 افراد شہید ہوئے۔ اس طرح اس سانحے میں 20 افراد شہید ہوئے۔ شہیدوں کے مقدس خون اور زخمیوں کے بدن سے بہنے والے خون کے ہر قطرے نے خدا کی بزرگی و بڑائی کی اس طرح گواہی دی کہ قیامت تک کے لیے ان کی یہ گواہی امر ہو گئی۔ اللہ کی مصلحت یہی ہے، اسی میں بہرحال پروردگار عالم نے اس کے لیے ایک اچھی موت، شہادت کی موت منتخب کی، اس کو منتخب کیا۔ یہ ہمارے لیے بھی صبر کے لیے صبر کا باعث بنی۔ ایک بیٹا ہے اس کا، لیکن یہ کہ اس کی وفات کے بعد، واقعے کے بعد پیدا ہوا ہے، وہ دیکھ بھی نہیں سکا۔ اس کو اپنے بچے کی بڑی تمنا تھی، لیکن یہ کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکا۔ بلکہ اس نے اپنی زندگی میں ہی وہ کہتا تھا کہ امی میں نے بچہ ہوگا، میں نے اپنے بیٹے کا نام سوچ کے رکھا ہے، تو یہ میں نام رکھوں گا۔ اپنے بیٹے کا نام علی موسیٰ رکھا ہے سر۔ حیدری مسجد بم بلاسٹ جو تھا وہ دہشت گردوں کا بہت ہی زیادہ ٹارگیٹڈ حصہ تھا، کیونکہ یہ وہ ایسی مسجد تھی جو پورے کراچی سے وہاں پہ لوگ نماز پڑھنے آتے تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ ایک کمرشل ایریا میں وہ مسجد ہے، اور بڑے بڑے آفیسرز بینکس میں جو جابس کرتے ہیں، اہل تشیع افراد، وہ وہیں پہ نماز ادا کرتے تھے۔ اس مسجد میں جو انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا، اس کی وجہ سے پورا کراچی ڈسٹرب ہوا،
اور شہیدوں کی میت خالی ایک جگہ نہیں گئی, پورے کراچی کی مختلف علاقوں میں مختلف شہیدوں کی میتیں گئی, جس سے پورا شہر ڈسٹرب ہوا. وہاں کا اور گرمی اتنی شدید تھی, اس میں ایسا کیمیکل استعمال ہوا کہ جس نے وہاں کی آکسیجن کو ختم کر دیا, اور لوگوں کو جسمانی طور پہ سب کو آگ محسوس ہوئی, اور لوگوں کے کپڑے جل گئے, اور مسجد کی حالت جن لوگوں نے بعد میں دیکھی وہ جگہ جگہ سے جلی ہوئی تھی. ایسا لگتا تھا کہ جیسے آگ کے گولے پہ ہم لوگ کو بٹھا دیا گیا ہے. راستے میں بھی اہل سنت کے جوانوں نے بہت زیادہ یعنی کہ مدد کی ٹریفک وغیرہ کنٹرول کرنے میں. جس طریقے سے ٹریفک ڈسٹرب ہو گیا تھا, تقریباً 100 ایمبولینسز جو تھیں وہ اس وقت ایم اے جنرل روڈ سے گزر رہی تھیں. میں تو خیر بے ہوش تھا, لیکن جس طریقے سے مجھے بتایا کہ لوگوں نے اس طریقے سے ہیلپ کی. سول ہاسپٹل میں جو میں ہوش میں تھا تو میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے پانی کی بوتلیں, جوس کے ڈبے اہل سنت برادران ہمارے لیے لے کے آ رہے تھے. دینے والوں کی لائنیں لگی سول ہاسپٹل میں, اور جہاں جہاں ہمارے زخمی شہید پہنچے ان کے لوگوں کو وہاں پہ بولا گیا. او ایم آئی میں تھا, وہاں پہ کافی لوگ جو ہے ڈونیٹ کرنے کے لیے پہنچے, اور کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی. اس کا سارا خرچہ گورنمنٹ نے اٹھایا. خصوصاً میں گورنر سندھ عشرت العباس صاحب کا بہت ممنون ہوں. آئے تھے اسپیشلی وہاں پہ وزٹ کیا انہوں نے, اور ہاسپٹل انتظامیہ کو انہوں نے آرڈر کیا کہ ان لوگ سے کسی بھی قسم کا کوئی چارج. لیکن یہ ہے کہ بعض ساتھی ہمارے کافی اب بھی کرائسس میں ہیں, جو زخمی ہوئے ہیں, ان کی جابس وغیرہ ختم ہو گئی ہیں, کوئی چلنے پھرنے سے رہ گیا ہے, کچھ کو کچھ پرابلمس ہو گئی ہیں. شیخ حیدر کرار نماز پڑھ رہے تھے. تکبیرۃ الاحرام کے بعد اللہ اکبر کرنے کے بعد بم دھماکہ. مسجد حیدری میں مشغول نماز نمازیوں پر یہ حملہ بھی دراصل نمازیوں پر نہیں بلکہ دین کی اساس اور بنیادوں پر حملہ ہے. یہ نظریہ پاکستان اور پاکستان کی بنیادوں پر حملہ ہے. رسول خدا کا واضح ارشاد ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والا ہم میں سے نہیں ہے. اس بدترین دھماکے کے نتیجے میں 10 نمازیوں نے جائے وقوع پر جام شہادت نوش کیا, جبکہ 210 نمازی زخمی ہو گئے, جنہیں سول جناح, آغا خان اور لیاقت نیشنل اسپتال لے جایا گیا تھا. بھائی وہ دھماکے کی آواز سنی اور میں فوراً لوگوں کی مدد کے لیے بھاگا. مسجد کا درمیانی ستون زمین سے اکھڑ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. مسجد خون سے لت پت ہو گئی. خون کے دھبے جا بجا مسجد کی دیواروں اور چھت پر انسانیت کی تذلیل کی یہ کہانی تحریر کر گئے. گوشت اور انسانی اعضاء کے ٹکڑے دیواروں پر چسپاں ہو گئے. حیدری مسجد کے زخمی نہیں دیکھا تھا میں تو, مطلب کہ 1:15 بجے آیا تھا. میں جب کیا کہتے جوتے رکھے میں تو آگے بیٹھ گیا, اور پھر کیا کہتے ہیں تو میری جو اس سے دعا سلام ہوئی کہ میرے برابر میں تو وہ شہید ہو گئے, آگے والے شہید ہو گئے. دھماکہ ہوا تو میں تو کیا کہتے بیٹھ گیا, تو جھکا کے پہلے تو یہاں لگی تھی, اس میں آئے پیچھے آئے. اس میں کہا چوکیدار نے بتایا تھا کہ نہیں جناب اس سے تھوڑے کو ہم نے دفنا دی تھی, اور شاید بلکہ اس کی جو اپنے ٹانگیں تھیں, حملہ آور کی ٹانگیں بھی یہاں سے لگ کے اس میں آ گئی تھیں. شہید صابر حسین ہاشمی UPL ڈویژن کمپیوٹر ڈویژن میں ہوتے تھے. کے ذریعے پتہ چلا جب لاسٹ ہوا پھر ہم یہاں کے اسپتال پہنچے تھے. جب ہم پہنچے تھے تو اس وقت ان کی شہادت ہو چکی. ہم تو ڈائریکٹ وہاں پہنچے تھے, وہاں تلاش کرتے رہے, کوئی نام پکار رہے ہیں, کوئی جواب ہی نہیں دیتا کہ بھائی یہ یہاں ہے. بڑی مشکل سے پھر وہ پتہ چلا کہ جناب کسی فلور کے اوپر آپریشن تھیٹر میں, وہاں گئے تو انہیں نے کہا کہ ابھی
6 पेशेंट्स आए थे हमारे पास, टोटल दो सिविल हॉस्पिटल से शिफ्ट होकर आए थे और 4 इनिशियली हमारे पास आ गए थे। एक पेशेंट जो था बहुत सीरियस था, 90% बर्न्स थे, उसको वो एक्सपायर हो गया। यहाँ पे हमने वेंटिलेटर पे डाल दिया था उनको, लेकिन वो एक्सपायर हो गया। डेड बॉडी जी, उनकी डेड बॉडी उनके रिश्तेदार ले गए। वो वसी हैदर साहब थे जो इसके वाइस प्रेसिडेंट थे अभी बैंक के जी। हमारे पास सिर्फ एक पेशेंट अब बच गया, बाकी सब जो है घर चले गए या फिर वो शिफ्ट हो गए। एक लियाकत नेशनल में गए, एहसान नाम। पहला वाक़या नहीं, कोयटा के आला वाक़े का तसलसल है। अगर ये सूबाई हुकूमतें सपोर्ट ना करती, इन्होंने कातिलों को न सिर्फ ये कि गिरफ्तार नहीं किया कोयटा के सानिहात के बाद मुसलसल, बल्कि इन्होंने यहाँ तक किया कि जो पंजाब और बलूचिस्तान में जो सज़ा याफ्ता कैदी थे दहशतगर्द, उनको भी रिहा किया। जिस मुल्क में सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दों की सरपरस्ती करें, उन्हें पनाहें देंगे, इस तरह से उनको आज़ाद छोड़ा जाएगा, मौत की सज़ाओं के कैदियों को जेलों से रिहा किया जाएगा, उस मुल्क में ये होगा। और ये हुकूमत के सारे दावे भुंडे साबित हुए, सब इनका भरम खुल गया है कि क्या इनकी सिक्योरिटी है क्या नहीं है। इसी मुल्क में, इसी शहर में जब ये चाहते हैं कुछ नहीं होता, जब ये चाहते हैं हमारी लाशें हम लोग को उठानी पड़ती हैं। अमन व अमान के दावे हम अपने लोगों को एक हद तक तस्कीन दे सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं। जिनके घरों में लाशें उड़ती हैं, उनका रिएक्शन अमेरिका में भी होता है, उनके भी लोग मरे तो वो भी सड़कों पे आए, उन्होंने बेगुनाह मुसलमानों पे हमला किया है। दुनिया में जहाँ इराक़ में, करबला में, नजफ़ में, ये उन्हीं वाक़यात का तसलसल है। करबला और नजफ़ के वाक़यात से तवज्जो हटाने के लिए ये वाक़यात यहाँ पे किए गए हैं, लेकिन सिर्फ अमेरिका नहीं, उसके एजेंट यहाँ पर करें, यानी या तो उनके एजेंटों के ज़रिए से किया जाए, जिनके ब्रेन वाशिंग की गई है, जिनके दिमागों में ये जहर भरा गया है। कोई फ़िरका इसमें मुलव्वस नहीं है मुसलमानों का, क्योंकि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता। ये यहूदियों के एजेंट हैं। ये तो अभी हम ज़ाहिर है अभी अस्पतालों में अपने ज़ख्मी और डेड बॉडीज़ को देख रहे हैं। इसके बाद ये सब जब कलेक्शन होगा, हमारे सब उलमा जमा होंगे, मीटिंग होगी, उसके बाद हम तय करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात बता दिया कि हद होती है सब्र की हर चीज़ की इंतहा। अगर हम अपने उस वक्त से हुकूमत डरे, माजी में भी ये हुआ कि उस वक्त से कि जब हमारे लोग हमारी बातें ना सुने, हमारा हुक्म ना माने, और फिर जब वो सड़कों पर आएंगे तो इस मुल्क में, इस शहर में जो होगा उसकी ज़िम्मेदार माजी में भी एजेंसियां रही हैं। ये एजेंसियों के परवरदा हैं। एजेंसियां इनको छोड़ती हैं, काम कराती हैं, अपने मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए, हुकूमती मकासद के लिए भुगतना पड़ता है हमको। लिहाजा जो भी लाहे अमल होगा, हम लाहे अमल नहीं भी देंगे तो हमारी कौम जानती है कि उसको क्या करना है। लिहाजा बेहतर यही होगा कि इस वाक़े को बंद समझा जाए, आखिरी बंद। ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ, खुला वार्निंग दे रहा हूँ हुकूमत को। ये मेरी वार्निंग नहीं है, पूरी कौम की वार्निंग है। हम रहें या ना रहें, हमारी कौम जानती है कि हमें क्या करना है। अगर इस वाक़यात का सद्देबा और उन कातिलों को कैफरे किरदार तक अगर नहीं पहुँचाएगा, अब हम टेलीफोन आ रहे हैं, अब हमसे रब्ता किया जा रहा है कि लोगों को पुरअमन रखा जाए और कातिलों को जेलों से रिहा किया जाता है, कातिलों की सरपरस्ती की जाती है। कितने इन्होंने आदमियों को सजाएं दी। कोयटा में 150 आदमी 6 महीने के अंदर शहीद हुए हैं। आशुरब कितने लोगों को इन्होंने पकड़ा, कितने लोगों को सजाएं दी हैं, सिवाय तिफल तसल्ली। और अभी तक वहाँ पे दूसरों को पैसे दे दिए गए, जो शहीद हुए, जो मारे गए, जिनका ऐलान किया था, उनको किसी को एक पाई ना जख्मियों को दी गई है ना शहीद किया गया है। ऐन मस्जिद के अंदर ऐन नमाज की हालत में ये कार्रवाई, ये एक मुस्लिम मुल्क में इंतहाई शर्मनाक अमल है। पेश इमाम मौलाना निसार सरबाज धमाके के हालात को यूं। उस दिन जब मैं आया तो कोई इसी पिलर के साथ टैग लगाए हुए मेरे तरफ को वो उधर से टकटकी लगा कर देखता रहा। ये जो पिलर है जो टूटा गया, तो अकामत का टाइम आ गया। नीचे एक दो बातें तो कोई बातें करने की आवाज़ तो आ रही थी। मैंने ये समझा शायद वो जगह बगह के लिए लोग होता रहता है कि कोई किसी को इधर आ जाओ, किसी को इधर आ जाओ। मैंने समझा कि वो बात हो रही होगी। मैंने अपना अकामा शुरू किया। अकामा शुरू करने के बाद मैंने नीयत बांधी। नीयत बांध के मैंने तकबीरतुल इहराम कहा, अल्लाहु अकबर। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमान में मैं पहुंचा था। जब तक गया था रहमान में मैं पहुंचा था, ऐसे में धमाका हुआ। वो धमाका हुआ। उस धमाके के बाद मुझे तो कुछ भी, अब उसके बाद हम लोग बेहोश हो गए। एक मरतबा मुझे याद पड़ता है कि मरतबा मुझे जब एक होश सा आया, 2-3 बंदे मुझे यहाँ से घसीट रहे थे। तो मस्जिद बिल्कुल धुआं ही धुआं था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ से तकरीबन यहाँ तक लेके गया, लोगों ने फिर दोबारा बेहोश हो गया। और उसके बाद में एम्बुलेंस में जो सूरत हाल, उसके बाद जो हुआ, मस्जिद के सारे दरवाजे बाहर, खिड़कियाँ बाहर, ये पिलर टूटे पड़े थे। पीठ के जानिब
4-5 जख्म आए थे। ये हाथ टूटा था, इसमें छर्रे थे। घर पे चले आने के बाद 2 महीने तक मैं बिस्तर पे रहा। मेरे हाथ के अंदर जो छर्रे थे वो निकाला गया ऑपरेशन के ज़रिए, मेरे हड्डी टूट गया था, वो टूट गया। मगर एक कान हमारा आज भी चला गया। उस वक्त से ये कान मेरा सुनता नहीं है, ये कान से काम कर रहे हैं। और इस हाथ में अभी मौफ आ रहे हैं, मगर ये किस चीज़ को पकड़ने की सलाहियत नहीं है। बोला था कि आप ना तैयार है ना, हम लोग बाजार जाएंगे, मुझे जाना है। जबकि 8 दिन से घर पे थे छुट्टी लेके ऑफिस से। सिविल से फिर पता चला, लिस्ट देखी तो इनका कहीं नाम नहीं था। मेरे दिल में ये था कि शायद ये ना हो सकता है हल्के फुल्के जख्म वो घर भेज दिया, कहीं भी भेज दिया। लेकिन फिर दिल में ये हुआ कि चलो लियाकत नेशनल चलते हैं। फिर वहाँ पहुँचे तो फिर वहाँ पे पता चला कि मतलब ये इमरजेंसी में थे। फिर मैं इमरजेंसी में गई तो मुझे तो लगा ही नहीं कि वो बंदा ये वो है जो सुबह में ऑफिस गया था। मैं खुद ही नहीं पहचान पा रही थी कि ये वही है। इसलिए कि बिल्कुल एकदम से जो कपड़े इनके वाइट होते थे ऑफिस के, तो बिल्कुल काले सिया जगह जगह से। पापा 8 दिन से छुट्टियों पे थे और उन्होंने शायद से वो साने मस्जिद हदी से एक दिन पहले रात में उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं इंतकाल हो गया तो मैं सराहने खड़े होकर सूरह यासीन और तिलावत कुरान पाक पढ़ना। और फिर वो सुबह चले गए। हम लोगों ने रोका भी उनको कि नहीं जाए, आपकी तबीयत ख़राब है। लेकिन वो चले गए जुम्मे वाले दिन नमाज़ पढ़ने के लिए ज़ोहर असर की। तो वहाँ बम ब्लास्ट हो गया, तो उसमें वो 13 दिन तक के यकीन है कि मेरे पापा वापस लौटेंगे ईमान ज़माना के साथ और वो उनके सिपाही बन के आएंगे। कहता है कि शहादत सबको नसीब हो, और वो भी नमाज में, तो क्या ही बात है। पैरोकार इमाम हुसैन थे ज़ाहिर है, और हज़रत अली की तरह नमाज में शहीद हुए मस्जिद में। और हमें बहुत फ़ख्र है कि उनको ऐसी शहादत नसीब हुई, और खुदा करे कि अगर ऐसी मौत हमें भी मिले। और हमारे अगर ये 3 बेटे हैं, अगर मरना सबने बहरहाल है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जाना है सबने। इसी तरह से शहादतें हम सबको नसीब हो, आमीन। एकदम गरम गरम भाप मुंह पे लगी और दिमाग सुन होकर रह गया और कानों में सीटियाँ सी बजने लगी। बस वो थोड़ा सा मैं जब सेंस में आया, होश आया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई ब्लास्ट हुआ है और सब चीख पुकार की आवाज़ें आ रही थी। तो जब मैं बाहर निकला तो मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं थे, सिर्फ बेल्ट बनी हुई थी और शर्ट्स के चिथड़े थे, पैंट के चिथड़े हुए थे। बाहर उस दिन बहुत शदीद गर्मी भी थी, क्योंकि हम जब ब्लास्ट हुआ हमारा, हम पूरी तरह से फूल चुके थे और जलन का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था और पूरा मुंह जो था ब्लैक हो गया था। वो असल में केमिकल बम था जो जहाँ फटता था वहाँ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता था। और वही हाल हमारा हुआ कि जितने सिंथेटिक जितने कपड़े जिसके तो सब जल चुके थे यानी, और जो इसका जो कॉटन था उसने उसको थोड़ा सा सपोर्ट दी थी। जब हम बाहर निकले थोड़ी ऑक्सीजन मिली तो हमारे जिस्म पे पूरी जलन और कपड़े यानी ख़त्म हो चुके थे। यानी बाकायदा कोई आग मिले, लेकिन उस केमिकल ने हमें जला दिया था। हमें वो मकाम तो नहीं मिल सका जो शोधा का था, लेकिन शायद इस इंतजार में कि मौला ने हमसे क्या काम लेना है। 95 से लेके अब तक बम ब्लास्टिंग के लाशें, कलाशनकोव के शहीद करदा लाशें हम उठाते रहे तकरीबन हज़ारों की तादाद में। अब लगता था कि अमन होगा, लेकिन तकरीबन 6000 आदमी कराची में कत्ल हो चुके हैं, जिनमें 9 बाद 9 उन सब के कातिल गिरफ्तार, लेकिन आज तक किसी कातिल को सज़ा नहीं हुई। ये तमाम काम एक अजीम मंसूबाबंदी के तहत हुआ। सिर्फ गुज़श्ता 2 दिहाइयों का जायज़ा लें तो आपको इल्म होगा कि किस तरह फहरिस्त शुहदा में शहीद कायद जैसे उलमा भी, शौकत मिर्ज़ा जैसे इदारा साज अफराद भी थे, वक़ार नकवी जैसे कानूनदान भी थे, आले सफदर जैसे मसीहा भी थे। डॉक्टरों, इंजीनियरों को कत्ल किया गया ताकि एक जानिब इस मुल्क को काबिल और मुहिब्बे वतन सपूतों से महरूम किया जाए।
मस्जिद हैदरी में इस बम धमाके के बाद तमाम नमाजी इस बम से मुतासिर हो चुके थे। इन जख्मियों को सबसे पहली इमदाद सिंध मदरसतुल इस्लाम में मौजूद बरादरान अहले सुन्नत की मस्जिद में नमाज जुमा की तैयारियों में मसरूफ़ नमाजियों ने पहुंचाई। जहां खुतबा जुमा दिया जा रहा था कि मस्जिद हैदरी में बम धमाके की शदीद आवाज़ पर खतीब अहले सुन्नत ने जुमा रोक कर कहा कि अपने भाइयों की इमदाद करें, और यूं बरादरान अहले सुन्नत ने अपनी पगड़ियों को खोल कर चादर के तौर पर इस्तेमाल किया और अपनी गाड़ियों में जख्मियों को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुए। और इसके बाद जख्मियों को खून देने के लिए हजारों सुन्नी शियों की लंबी लंबी कतारें इस इत्तेहाद भाईचारे की अमली तस्वीर बन गईं, जिसके लिए इरशाद नबवी है कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इमदाद को आने वाले अहले सुन्नत बरादरान के बारे में मौलाना ने फिर लोगों के जो ज़ख्मी उनको उठाना था, जो शहीद हुए उनको बचाना था, लोगों को आग लगी थी। तो बराबर के जो मस्जिद है हमारे यहाँ अहले सुन्नत के बराबर में जो मस्जिद है हमारे बराबर में, यहाँ पर इनके बहुत बड़ी खिदमत रहे हमारे साथ, बहुत कापरेट किया उन्होंने। जुमे की नमाज़ होनी थी, वो नमाज को छोड़कर इन ज़ख्मियों को उठाना और मस्जिद के बागदौड़ में हिस्सा लिया उन्होंने। और उन्होंने जिनके पास उनकी गाड़ियाँ थी उन्होंने अपनी गाड़ियों को भी इस्तेमाल किया, उसमें ज़ख्मियों को डाल कर पहुँचा दिया। जिनके पास नहीं थी तो वो टैक्सी पकड़ा, जो भी गाड़ी हाथ में आया था उन्होंने बागदौड़ किया। हमारे साथ बहुत कापरेट रहा कि उन्होंने उस दिन उनकी भी नमाज नहीं हुई, जुमे की नमाज नहीं हुई उनकी, वो इसी मदद के सिलसिले में बागदौड़ में रहे हमारे साथ। दुश्मनान इस्लाम ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मादर इल्मी सिंध मदरसतुल इस्लाम में वाक़े मस्जिद हैदरी का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया, क्योंकि शहर की मसरूफ़ तरीन कारोबारी मरकज़ में वाक़े इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की तादाद ज़्यादातर उन अफराद पर मुश्तमिल होती है जो शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इस इलाके में मुलाजमत या बसिलसिले रोजगार आते हैं। बहुत से जो लोग जख्मी हैं वो ऐसे लोग हैं कि जो क्योंकि जो जिस इलाके में ये जो मस्जिद वाक़ है, ये सिंध मदरसा है जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने भी तालीम हासिल की है, और ये पाकिस्तान से क़याम से कबल मस्जिदें वाक़ हैं। एक तरफ अहले सुन्नत की मस्जिद है, एक तरफ अहले तशी की, और इस मस्जिद का नाम है हैदरी मस्जिद, जहाँ पे ये धमाका हुआ है। और वहाँ पे जो लोग अहले तशी से मुतालिक हैं, जो मल्टी नेशनल में काम करते हैं, अभी बैंक में काम करते हैं, नेशनल बैंक में काम करते हैं, ये सब अपनी नमाज वहीं अदा करते हैं। और ये वही लोग हैं कि जो जख्मी हुए हैं, जो मुतासिर हुए हैं और जो शहीद हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ बहुत ही तकलीफदेह है, बहुत तकलीफदेह है। और इस हद तक तकलीफदेह है कि मैं समझता हूँ कि किसी अहम और जिम्मेदार आदमी को आके लोगों से खिताब करना चाहिए, ताकि ये जो सिलसिला है इसमें नरमी पैदा हो और जो खौफ की फिजा है उसको टूटना चाहिए। फहरिस्त शुहदा में बुजुर्ग शहीद ख्वाजा कुमैल, नौजवान फजल अब्बास लाखानी, मिर्ज़ा आरिफ हुसैन, मुअम्मर हाफिज अली राजन, हसनैन जैदी, साबिर हुसैन हाशमी, मोहम्मद अहमद, अल्ताफ़ हुसैन नकवी, मोहम्मद नदीम, निहाल रज़ा जैदी, मीर सखा अली, अब्दुल्ला नूरानी, अहमर मंजर, अफसर अब्बास, असगर अली फिदानी, आगा गुलाम हैदर, डॉक्टर असद अब्बास, सैयद अली रिजवी और अली नजफ मर्दान शामिल हैं।
आइए शहादतों के इस अजीम पुरवकार और पुरइफ्तिखार विरसे के सबब बारगाह खुदाबंदी में शुहदाए मस्जिद हैदरी और तमाम शुहदाए राह इस्लाम की सरबुलंदी और सरफराजी के लिए दुआ करते हुए उनकी खिदमत में सलाम अकीदत पेश करें, जिनके सर बुरीदा लाशें पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था। क्या यही कि हम खुदा की बारगाह में सर बसजूद थे? और अगर यही हमारा कसूर था तो हमें इस पर फख्र है, खुदा का शुक्र है कि उसने हमें इस शहादत के लिए मुंतखब किया और दीन खुदा के दुश्मन की किस्मत में जुल्म को रवा रखा। ऐ शुहदा के वारिसों, ये खुदा की तौफीकात ही हैं कि वो ऐसे मौके पर सब्र अदा करे कि जब कोई बहन अपने भाई की मुंतज़िर हो, जब कोई माँ अपने जिगर गोशे का इंतज़ार कर रही हो, जब कोई बाप अपने बुढ़ापे के आसरे का मुंतज़िर हो, जब कोई शरीक हयात अपने शौहर की बखैरियत वापसी की दुआएं मांग रही हो, और जब कोई बच्चा बाप का इंतज़ार करते करते माँ की गोद में सर रख कर सो गया हो। मेरे अजीम बरादर, तुम्हें भुला न सके, जो दिल पे आज गुजरती है वो बता न सके। जो तुमने जामे शहादत को नोश फरमाया, तुम्हारा जज्बे इसार हम भुला न सके।